میری گزارش ہے یہ سارے حضرات کچھ کلمات ان سے سننا چاہتے ہیں، خصوصاً گھرانے کے لوگ. بیٹھ جائیں. ایک بات تو ہم نے یہاں 100 دفعہ سنی ہے اور حضرت نے بھی سنی ہوگی بابا جی رحمہ اللہ سے کہ وہ ہمیشہ فکر آخرت کی دعوت دیتے تھے. ان کے پاس آ کر دنیا کی حقیقت سامنے آتی تھی اور انہوں نے جو اپنے گھر کو بیت العنکبوت کہا تھا یہ وہ حقیقت دل سے مانتے بھی تھے اور ہمیں سمجھاتے بھی تھے. اور وہ جو اگلے جہاں، وہ جنت، وہ برزخ اتنی خوبصورت انداز میں بیان کرتے تھے، حقیقی معنی میں سمجھتے. میں نے ان سے سنا تھا ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ مولانا روم رحمہ اللہ آخری جذب کے دنوں میں فوتگی کے گھر جا کر ذرا خوشی کا اظہار کرتے تو لوگ آ کر ان کے بیٹوں سے شکایت کرتے کہ بابا غم کے دنوں میں ہمارے خوشی کے اظہار کے لیے. تو فرمایا مولانا روم نے فرمایا کہ میں نادان لوگوں کی وجہ سے وہ حقیقت چھپا دوں، اس کو تو اللہ نے قید اور جیل سے رہائی دی ہے. یہ تو خوشی کے دن ہے کہ وہ اپنے باغ میں گئے. میں حضرت کا شکریہ بھی ادا کر سکتا ہوں تمام آپ خاندان کی طرف سے کہ آج انہوں نے یہاں تشریف لا کر اس گھرانے کو مولانا محترم ابو الوقت صاحب، ابو الاحسان صاحب کو اتنا شوق سے روشنی لگے. ٹھیک ہے آپ آپ جس دن حفظ پورا کریں گے میں گاڑی لے کر دوں گا. اس دور میں گاڑیاں کسی کے پاس نہیں ہوتی. ابو الفیض، ابو الاحسان اور ان کا یہ سارا ایک خاندان یہاں موجود ہے. تو میں مولانا عبد الباقی صاحب کا خاندان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة علی اہلہ وبعد. فاعوذ باللہ من اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادر مکرم ابو الوقت صاحب اور حافظ احسان صاحب اور اس صدمہ میں اور سانحہ میں اور قیامت خیز اس منظر میں موجود حضرات علماء کرام اور حضرت کے محبین اور معتقدین اور عاشقین، میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں آپ کو بتا دوں کہ حضرت کیا تھا کہ ہماری آسمان تک پہنچ جاتی ہے، سورج کو بھی دیکھتی ہے اور چاند کو اور تاروں کو بھی دیکھتی ہے، لیکن ان آنکھوں کو یہ نچلے والا جو قریبی حصہ یہ نظر نہیں آتا. یہ آنکھوں کو پیشانی نظر نہیں آتی، ان آنکھوں کو انسان کی گدی بھی نظر نہیں آتی، ان آنکھوں کو پیٹ بھی نظر نہیں آتا. اور کہا جاتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا. آنکھیں ہماری آسمان تو پہنچ جاتی ہے لیکن خود ان کے نیچے اندھیرا. معاف کیجئے گا، حویلیاں اور ہری پور اور ایبٹ آباد والے چلاسی کو لوگوں نے ایران تک پہنچا لیا لیکن آپ نے پہچانا نہیں. ایران تک لوگوں نے، اور جو فارسی ہے جن کو اپنے زبان پر ناز ہے اور اپنے ادب پہ ناز ہے، وہ بھی آپ کے سامنے، چونکہ ایران میرا ملک ہے، میں بلوچ ہوں اور ایران کے علماء دھڑا دھڑ میں بھیجتا تھا حضرت کے پاس. 10 12 جلدوں میں مثنوی مولانا رومی کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے، لیکن وہ بھی تڑپتے تھے کہ ہمیں چلاسی کی ملاقات کرنی. ہمارے حضرت ہے، عرب ہے، شیخ محمد عوام علماء اس کو جانتے ہیں. 20 30 جلدوں کی اس کی کتابیں ہیں. بڑا حسین اور خوبصورت ہے. مدینے میں ہوتا تھا، ابھی وہ تشریف لائے یہاں ترکیہ میں ہے آج کل. شیخ محمد عوامہ جن کو کہا جاتا ہے، حضرت جی فرماتے کہ لا یعلم العالم الا العالم. عالم کے علم کا ادراک اور عالم کے علم کی گہرائی کا ادراک بھی عالم ہی کر سکتا ہے. شاید ہم لوگ پہچان نہ سکے، ہمارے پاس وہ علم نہیں تھا. ہم چلاسی کو پہچان نہ سکے، ہم نے چلاسی کو پہچانا نہیں. مستدرک جلد حاکم، مستدرک حاکم کی پہلی جلد میں ہے کہ اولیاء اللہ کی پہچان یہ بتائی، الذین اذا حضروا لم یعرفوا. آپ کے مجلس میں جمع آ جائے لم یعرفوا، ان کو کوئی پہچانے گا نہیں. وَإِذَا غَابُوا لَمْ يُسْتَفَدُوا. آپ کے مجلس سے جب غائب ہو جائے تو لم یُسْتَفَدُوا، ان کو تلاش بھی نہیں کیا جاتا. مشکات جلد ثانی میں حدیث ہے، فرمایا کہ لا یشار الیہم بالبنان،
जो बड़े बड़े लोग होते हैं बस उनकी कद इतनी नहीं होती, 4 फुट की होती है, लेकिन 50 फुट वो अपने आप को मीडिया के ज़रिए से दिखाते भी हैं, अखबारात और जरायद के ज़रिए से दिखाते हैं। वो पब्लिसिटी और शोहरत के बड़े भूखे ही होते हैं। बाबा चिलासी के अंदर ये पता नहीं, ये चीज़ नहीं थी। बाबा चिलासी को अपना भी पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। इस फकीर को, इस मिस्किन को, मैं मुल्ला हूँ, शायद आपके इल्म में होगा, हज़ारों उलमा, इधर भी 20 मौलवी मेरे शागिर्द अभी इस मजलिस में भी मौजूद है। हज़ारों उलमा को साल में मैं पढ़ाता हूँ। मैंने बड़े बड़े उलमा देखे, हर एक की खुशबू अलग है, हर एक पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाए, हर एक की खुशबू अलग है, लेकिन जिलासी की खुशबू अलग थी। सुभान अल्लाह। जिलासी की खुशबू ही अलग थी। और अगर आप उसको पहचानेंगे नहीं, अब तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, अब तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, अब मैं हम पहचानेंगे तो अब फायदा क्या हो गया? अब क्या फायदा होगा कि आपकी मौजूदगी में हमने आपसे क्या इस्तिफादा किया, आपकी किताबों से क्या इस्तिफादा किया। हज़रत अक़दस शेखुल इस्लाम मौलाना तक़ी साहब ने बहुत पहले एक मज़मून लिखा कि ये ज़माने का रूमी है। लोग अंग्रेज़ भी रूमी को जानते हैं, अंग्रेज़ भी रूमी को जानते हैं। और आज से 7 साल पहले की बात मुझे याद है, अखबारात में मैंने पढ़ा कि अमेरिका में किताबों के जो सालाना नुमाइश लगती है किताबों की स्टाइल, तो मसनवी मौलाना रूमी के इंग्लिश में भी तर्जुमा हो चुका है। और हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आकर के बात से बात निकालना, बात की गहराई तक जाना, ये मौलाना रूमी का शेवा था। और अल्लामा नवाज़ शाह कश्मीरी जैसे इंसान भी वो कहते हैं जन्नत और जहन्नम को, मबदा और माद को मैं बुखारी और कुरान से समझ न सका, मौलाना रूमी से मैंने समझा। लेकिन हमारे शेख है मुफ्ती अब्दुल हफीज़ साहब यहाँ मौजूद है, मौलाना यूसुफ अफशानी साहब दामत बरकात मौलाना, बड़े अदीब है, बड़े अदीब है, बलोच है, मेरे अजीज़ है, बहुत गज़ब का ज़हीन आदमी है। कहते मौलाना मंजूर, लोग मौलाना रूमी को रोते हैं, लेकिन जलासी रूमी से भी बड़ा आदमी। सुभान अल्लाह। जी हाँ, हाँ, जो लोग जानने वाले हैं वही जानते हैं। मैंने अशार उनके पढ़ा, मशो सरदार बा सरदार दारस्त, बजो दीनार बा दीनार नारस्त, मनम बीमार इश्क अज़मन गुरेजन, हमा यारा की बा बीमार मारस्त। अब आपको सुनाऊं, तर्जुमा करूं, मेरे रस्सी में पड़ जाएगा, लेकिन यह है कि आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा कसीदा मैंने गाड़ी में मैंने मौलाना अफशानी साहब को सुनाया। वो चूंकि खुद एक अदीब है, सुनाते हुए अफशानी साहब झुक गए, सर झुक गया, कहने लगे मौलवी मंजूर, अल्लाह की कसम ये अशार इल्हामी है, ये किसी आम इंसान के नहीं है। कहने लगे कि ये इल्हामी है, ये इल्हामी अशार है। मैं खुद मुफ्ती अब्दुल हफीज़ को मालूम है, जामे फारूकिया में इमाम भी रहा हूँ, खतीब भी रहा हूँ, उस्ताद हदीस भी रहा हूँ, मुफ्ती भी रहा हूँ। जामे फारूकिया में एक बहुत बड़ा इदारा है पूरे पाकिस्तान के सदर विफाक मौलाना मुफ्ती तक़ी साहब के उस्ताद मुफ्ती निज़ामुद्दीन के बड़े बड़े उलमा के उस्ताद रईसुल मुहद्दिसीन शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान। 30 साल मैंने उनके जूते सीले किए। मैंने देखा, उसकी खुशबू भी देखी, तक़ी साहब भी देखी, मुफ्ती निज़ामुद्दीन भी देखा। लेकिन कुल्लियाती चिलासी, ये इतनी ज़ख़ीम किताब 1800-2000 सफ़ात की किताब मेरे हाथ पे जब लगी, मुझे पता नहीं था कि एबटाबाद क्या है, मुझे पता नहीं था कि चिलास क्या है, मैं नहीं जानता कि गुलाम नसीर चिलासी कौन है। लेकिन किताब मेरे हाथ पे लगी, 2 शेर पढ़ा, कहा और पढ़ो, 4 शेर और पढ़ा, कहने लगे और पढ़ो। किताब ने इतना मजबूर किया कि मैं रमज़ान में दर्स भी देता था, दौरे भी पढ़ाता था, दौरे सर्फ नव ये चीज़ें भी पढ़ाता, मसरूफ़ भी था, तरावीह भी पढ़ाता, दर्स कुरान भी देता। इन मसरूफियात के बावजूद एक हफ्ते के अंदर ये मैंने 2000 सफ़ात की किताब ख़त्म कर दी। सुभान अल्लाह। मैंने ये किताब ख़त्म कर दी। ख़त्म करने के बाद मैंने नंबर बाबा का कहीं से, अबुल वक्त को मैं नहीं जानता था, अबुल वक्त से तो मेरा ये कि हज़रत के पास आने जाने के बाद फिर अबुल वक्त से ये कि शुनासा यूँ कि ये हज़रत के साहिबजादे एहसान से बहुत कम मुलाकात होती थी। तो मैंने बाबा को फ़ोन किया, फ़ोन करके मैंने कहा कि बाबा आपकी किताब के अंदर मैंने ये अशार पढ़ा है, 10-12 अशार मैंने सुना दिए, सुना कर कभी आपको सुनाऊंगा, लेकिन इस वक्त सीना मेरा ज़ख्मी है। मैंने वो अशार सुना है। फरमाने लगे आप फ़ारसी है? मैंने कहा फ़ारसी ज़बान नहीं है, मैं बलोच आदमी, लेकिन बलोचों की ज़बान फ़ारसी से मिलती जुलती है। कहने लगे आप कहाँ होते हैं? मैंने कहा जामे फारूकी में होता हूँ, तालिब इल्म हूँ, मंजूर मेंगल मेरा नाम है। कहा अच्छा मंजूर मेंगल आपके तालिब इल्म है, तो आपसे कैसे मुलाकात हो सकती है?
कैसे आप ये है कि मुझे, मैंने कहा अब्बा जी मैं खुद आपके कदम बोसी के लिए आ जाऊँगा, मैं खुद आपके कदम चूमने के लिए आ जाऊँगा। मैं चूँकि यहाँ एबटाबाद, कश्मीर, मासरा, पेशावर और मुख्तलिफ पाकिस्तान के तमाम इलाकों में घूमता फिरता हूँ, प्रोग्रामों के लिए लोग बुलाते रहते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ उलमा है, मौलाना हबीब रहमान और बहुत से उलमा है, हजरत के पास बैठे, तो हजरत फरमाया कि आप कहाँ के? उन्होंने कहा जामे फारूकी के फाजिल है। फरमाया जामे फारूकी में एक तालिब इल्म है, मंजूर मेंगल नाम है, उसकी ज़ियारत को मेरा जी चाहता है। मंजूर मेंगल तालिब इल्म है, मैं उसको देखना चाह रहा हूँ। तो मौलाना हबीब रहमान ने साथियों ने कहा हजरत वो तालिब इल्म नहीं है, वो उस्ताद है, वो तालिब इल्म नहीं है, वो उस्ताद है। फिर मैं खुद आया, खुद आकर के फिर मैं हजरत से मिला, हजरत से मिल करके आपको आज ये बता रहा हूँ, यहाँ उलमा भी बहुत होंगे। मैंने कहा बाबा जी आपके उर्दू के अशार की किताबें मैंने पढ़ी है, अनफास नफीसा पढ़ी है, और आपके फारसी के सब किताबें पढ़ी है, और जो किताब मुझे तहकीक लाने की या जितनी भी किताबें मैं पढ़ चुका हूँ, उर्दू अरबी फारसी में पढ़ लेता हूँ। बाकी आपकी शीना ज़बान में 7 ज़बानों में जो आपका कलाम है उससे कुछ ज़बानें मुझे आती नहीं है, 8-9 ज़बानें मैं भी जानता हूँ, अरबी उर्दू फारसी कुछ न कुछ मैं जानता हूँ, वो किताब मैं आपको पढ़ता हूँ। लेकिन बाबा आपकी एक किताब है, उसकी जो खुशबू है बाकी किताबों में भी खुशबू है, लेकिन वो किताब इंसान को जला करके रख देती है। वो किताब कौन? कहने लगे कि बेटा ऐसे सहारा लगाए, तो कहने लगे बेटा ये कौन सी किताब है? वो मेरी कौन सी किताब है कि जो बाकी किताबों से सबसे आगे? मैंने कहा मादिन तौहीद। मैंने कहा कि बाबा जी मादिन तौहीद है आपकी किताब, मादिन तौहीद। वो इंसान को जला करके राख करके छोड़ देती है। कहने लगे ऐसे देख लगे हो तो सीधा होकर के बैठने लगे। कहने लगे जालिम के बच्चा आपने ये बात कैसे की, आपने ये बात किस तरीके पर की? मैंने कहा बाबा खूब पढ़ा है आपको, खूब पढ़ा है। फिर फरमाने लगे मुफ्ती निजामुद्दीन को मेरे 20 अशार याद थे, फिलाने मौलवी को 20, फिलान आदमी को सैकड़ों। मैंने कहा बाबा सैकड़ों 20 की बात न कर दें, मैं आपके हजारों अशार हाफिज हूँ। बाबा जी मैं आपके हजारों, आपने मुझे जला करके रख दिया है, लेकिन ये बताओ मादिन तौहीद के अंदर क्या रखा हुआ है? मेरे तलबा भी यहाँ उलमा भी मौजूद है, वो आपको बता देंगे कि मुझे बार बार बाबा याद आता है। मुझे सबक के अंदर भी जहाँ कोई हदीस आती है तो बाबा का कलाम मुझे याद आता है। मैंने बाबा को खूब पढ़ा, और मैं आपको ईरानी उलमा और बलोच उलमा की तर्जुमान होकर के आपको बता रहा हूँ। बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े शुअरा और बड़े बड़े माहिरीन लोग वो कहते हैं खुदा की कसम इस बंदे को इस टाइम पे नहीं होना चाहिए था, इस बंदे को इस जमाने के अंदर नहीं होना चाहिए, इसको आज से 1000 साल पहले होना चाहिए था। और मैं भी कहता हूँ कि वाकईदन इसको इस टाइम पे हमने इसकी कदर नहीं की, इसको सहाबा के साथ होना चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ कि हम कदरदान नहीं है। जब नेमत की कदर नहीं होती अल्लाह नेमत को अपने पास बुला लेता है, नेमत को अल्लाह। आज वो हमसे चले गए, सिवाय इसके हम क्या कर सकते हैं? ला नक़ूल इल्ला मा यर्ज़ा बिही रब्बुना। हमारे परवरदिगार जिस बात पे राजी है हम उसी पर राजी है। कहने लगे कि बेटा अजीब बात आपने की है, ये बात किसी और ने नहीं की है, 1-2 उलमा के हवाले उसने दिया कि उन्होंने ये बात की। फिर फरमाने लगे कि मादिन तौहीद में ये जो जलन है, इसमें जो सोजिश है, जिस अंदाज में इंसान को जला, ये इसलिए कि जब मैं खल्क़ खुदा से कट करके मैं जंगलों में पत्ता खाता था उस वक्त मैंने ये किताब लिखी है। जब मैं खल्क़ खुदा से कटा हुआ था, जब मैं खल्क़ खुदा से कटा हुआ था उस वक्त ये किताब मैंने लिखी है। बाकी किताबें मैंने शहर में मकान में रहते हुए अबुल वक्त के सामने या ये कि वक़ारुल इस्लाम के सामने, जो उनका कातिब आज पता नहीं है नहीं है, उनके सामने मैंने किताबें लिखी। ये जो जिन किताबों के आप नाम ले रहे हैं, ये किताबें मैं खल्क़ खुदा से कट करके सिर्फ खालिक के साथ मेरा ताल्लुक था, सिर्फ खालिक के साथ उस टाइम पे मैंने लिखा। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एबटाबाद का जब कोई नाम लेता, हरीपुर से यहाँ मक्का और मदीना नहीं है, और एबटाबाद के अंदर कोई मक्का और मदीना नहीं है, एबटाबाद कोई कीमती चीज नहीं है। एबटाबाद का नाम कोई लेता तो बाबा सामने, एबटाबाद का नाम कोई लेता बाबा ही सामने आ जाता। हम क्या कर सकते हैं? हम सब उनकी मग़फ़िरत के लिए, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें, और मेरे जैसे नालायक के लिए दुआ करें। मेरा नाम रखा था हाफिज इब्न हजर, मेरा बेटा, और आपको शायद ये उलमा को इसका इल्म नहीं होगा। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, ये अबुल वक्त को भी इसका इल्म नहीं होगा, आपको बता रहा हूँ। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द थे पीर फकीर मोहम्मद, मौलाना फकीर मोहम्मद। ये
अल्लाह आपका भला करे, दरबंद वाले फकीर मोहम्मद दरबंद वाले 100 साल से शायद इसकी उम्र थी। बहुत कम लोगों ने उलमा ने उसको देखा। फकीर मोहम्मद दरबंद ने बाबा जी ने इतना ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन मंतिकियों के बाप से ज्यादा मंतिक को समझता। तसव्वुफ के हकायक में वो रूमी से पीछे नहीं था, रूमी से आगे था। लेकिन मौलाना फकीर मोहम्मद को कहा कि मुझे जरा मेरा इम्तिहान ले लो और मुझे पहचान लो। मौलाना फकीर मोहम्मद फकीर आदमी था, कलंदर को जानता है, तो उन्होंने इनको किसी तरह इनके साथ उनकी नशिस्त होगी, बैठ गई। तो मौलाना फकीर मोहम्मद ने लिख दिया कि मेरी जिंदगी में ये पहला आदमी है जिसने मुझे हैरान कर दिया। इसने मुझे हैरान कर दिया। ये समंदर है, ये दरिया है, और इसने बाकायदा किसी मदरसे से अगर सनद हासिल भी नहीं की है। मैं फकीर मोहम्मद इस समंदर को इजाजत देता हूँ, इसकी मर्जी है जिस तरह बह जाए बह जाए। ये सनद हजरत की शायद मेरे पास हो। हजरत ने मुझे फरमाया कि मुझे ये सनद हासिल है, मैं बेटा आपको ये सनद देता हूँ, ये सनद आपको देता हूँ। आज शायद अबुल वक्त को इसका इल्म हो। ये ऐसा फकीर आदमी था। मेरी जबान आज़ाद, मेरी जबान बिल्कुल आज़ाद, और मनफी जबान में बहुत इस्तेमाल करता, बहुत मनफी जबान। कई मौके पर फरमाया कि बेटा अपनी जबान पे कंट्रोल करो, बेटा अपनी जबान पे कंट्रोल करो। बेटा अगर आपकी मनफी जबान न होती, मैं वही खरे ईसा बमक करो चुबाज आए हम खर गर्दन, मैं उसी तरह गधे की तरह, लेकिन ताहम आप मुझे मेरे ब्रेक लगाते रहे। और कभी शायद अबुल वक्त को इल्म भी हो। आपको याद है कि रात को 1 बजे के टाइम पे 1 बजे के टाइम पे कहा कि मेरा बेटा जो है ना मनफी जबान इस्तेमाल करता है, इसको खतरे बहुत हैं, हर किस्म के इसको खतरे हैं, और इसको मैं अबुल वक्त आपको पैसे देता हूँ, इजी लौट करके मंजूर को भेज दो, और मंजूर को कह दो मुझे फोन करे, मैं तफसील से इनसे बात कर रहा हूँ। मंजूर को कह दो कि मुझे फोन कर दे। लोग आते थे, कहते कि मेरा बेटा क्या हाल है, कैसे उसका हाल है। आज वो बेटा भी बाप से महरूम हो गया, आज वो महरूम हो गया। अब हमारे सरों पर दस्ते शफकत रखने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नजर नहीं आ रहा। आप हजरात से मेरी गुजारिश ये होगी कि बाबा जी की रूह के साथ हमारी वफादारी ये होगी, बाबा के रूह के साथ हमारी वफादारी यही होगी कि उनके निगाहों में आखिर दुनिया की जो हैसियत थी, कोई हैसियत नहीं थी, आखिरत उनके पेश नज़र थी। हम आखिरत को, अल्लाह की रज़ा को, अल्लाह की खुशनुदी को, अनबिया की रफ़ाक़त को अपने सामने रखेंगे, और बाबा के मिशन को जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह फरिश्तों को बता देंगे, अल्लाह ताला उनको बता देगा कि आपके औलाद आपके नक्शे कदम पर चल रही है। और अगर यह है कि हम उससे इन्हिराफ करेंगे तो फिर शायद बाबा की रूह को तकलीफ होगी, प्यारे पैगंबर की रूह को तकलीफ होगी, सवाला कन्बिया की अरवाह मुक़द्दसा पाकीज़ा अरवाह को तकलीफ होगी। अल्लाह ताला मुझे नालायक को भी आपके नक्शे कदम पे चला दे, और आपके इल्म और मारिफत उन उलूम से अल्लाह हज़्ज़ वाफिर मुझे नालायक को, और यहाँ जो उलमा मौजूद है उनको भी अल्लाह ताला हज़्ज़ वाफिर नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उनकी औलाद की दस्तगीरी फरमाए, और अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। ज़ख्म बहुत गहरा है, गहरा किस्म का जख्म लगा है। अल्लाह ताला हमें संभलने का मौका दे दे कि हम संभल जाएं। अल्लाह हमारी दस्तगीरी फरमाए, और अल्लाह ताला ये है कि हर तरह से सब्र जमील हमें अता फरमाए। हम अबुल वक्त से ताज़ियत करने के लिए नहीं आए, मैं इस काबिल हूँ कि आप मुझसे ताज़ियत करें। यहाँ के एक बंदा, हर बंदा इस काबिल है कि हम एक दूसरे से ताज़ियत करें। ये सिर्फ अबुल वक्त का और एहसान का नुकसान नहीं हुआ, इस घर का नुकसान नहीं हुआ, पूरी दुनिया का उम्मत मुस्लिमा का अजीम मौतुल आलिम आलिम की मौत है। अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत कामिल फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। मैं अबुल वक्त से भी, आप हज़रात से भी माफ़ी चाहता हूँ। मुझे ये है कि असबाब में मेरी मसरूफियत रहती है। आज मुझे बहुत देर से तकरीबन 9 बजे के टाइम पे या 8:30 बजे पर इस तरीक़े पर मुझे पता चल गया कि हज़रत इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। फिर मेरा टिकट पेशावर का था, बेटे को भी मैंने साथ दिया, मौलाना अब्दुल बाकी को। हमारे बिरादर मुकर्रम है पराचा साहब सिद्दीक पराचा, उनको मैंने इतना कर दी कि पेशावर में हमें ठहरना नहीं है, हम आएंगे पेशावर, टिकट चूँकि हो चुका है तो आप फ़ौरन मुझे, बदकिस्मती मेरी है कि जनाजे में मैं हाजिर न हो सका, लेकिन तलबा को 600 तकरीबन 600 से कुछ कम है, 500 से ज़्यादा तलबा दौर हदीस में, मैंने उनको बता दिया कि बाबा मैं तो लुट गया। मैंने उनको सुबह सबक में बताया कि मैं लुट गया, मैं भी रोता रहा। कोई भी तालिब मैंने ऐसा नहीं देखा, कोई आलिम नहीं देखा जो न रोते हों।
سارے رو رہے ہیں، سب کے سینوں پہ زخم لگا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی یہ ہے کہ ہماری دستگیری فرمائے، مدد فرمائے. اللہ تعالی خاص طور پر آپ کی اولاد کی، ان کی اللہ تعالی یہ ہے کہ ہر طرح سے دستگیری مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا میں پہلے کر چکا ہوں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. پیارے پروردگار رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. جتنے بھی یہاں پر دوست ہے غم زدہ ہے، افسردہ ہے، سینہ زخمی ہے، اے اللہ ہمارے ان سینوں کے زخمیوں کے لاج رکھتے ہوئے بابا کی مغفرت کاملہ فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. ان کی پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان کے نعم البدل عطا فرما دے، ہمیں نعم البدل عطا فرما دے. اللہ ہمارے آسمانوں کی چھتری چلی گئی، ہمیں کوئی ایسی چھتری دے اور ایسے صاحبان ہمیں دے دے جس کی سائے میں ہم علمی رہنمائی حاصل کر سکیں، علمی رہنمائی حاصل کر سکیں. اور اللہ ہماری کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دے. جو آپ کے روح کی وفاداری کا تقاضا تھا، آپ سے استفادہ کرنے کا جو حق تھا وہ ہم نہ کر سکے، اے اللہ منظور کی اس کوتاہی کو بھی معاف فرما دے، ہماری ان کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دے. اللہ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، جتنے بھی میرے بھائی آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے. آپ کو انبیاء کی رفاقت نصیب فرما دے، شہداء صلحاء صالحین اولیاء اللہ کی رفاقت نصیب فرما دے. آپ خود ایک ولی کامل تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آپ کو نصیب فرما دے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللهم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللهم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. آپ حضرات ادھر